السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. میں ہوں مدثر اقبال. اور میں ہوں آمنہ اکرم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, بلیٹن میں بات ہوگی. صنعتوں کو بند کرنے کا اقدام. سپر ٹیکس کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کریش. ڈالر مہنگا. سونا مہنگا. بجلی مہنگی. مہنگائی کا نیا ریکارڈ. بجلی لیں گے ایران سے. کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر. اور بھولا بھالا بھالو. اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے صنعتوں پر بجلی گرا دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور اسٹیل اور دیگر بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا. سالانہ 15 کروڑ سے زائد آمدن والوں پر 1% ٹیکس لگے گا. 20 کروڑ روپے سالانہ آمدن سے زائد والوں پر 2%، 25 کروڑ روپے سالانہ سے زائد کمانے والوں پر 3 اور 30 کروڑ روپے سالانہ سے زائد کمانے والوں پر 4% ٹیکس لگے گا. بعض حکومت کا خوفناک منی بجٹ مہنگائی کا ایک اور طوفان صنعتوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا. آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. سیمنٹ، اسٹیل، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، LNG ٹرمینل، فرٹیلائزر پر 10% سپر ٹیکس لگے گا. بینکنگ، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، کیمیکل، بیوریجز اور سگریٹ کی صنعت سے بھی 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا. سیمنٹ، اسٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. وزیر اعظم نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہر سال 2000 ارب ٹیکس غائب ہو جاتا ہے. ایک یہ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 2000 ارب روپیہ سال کا جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ سالانہ 15 کروڑ سے زائد آمدن والوں پر 1%، 20 کروڑ سے زائد پر 2%، 25 کروڑ پر 3% اور 30 کروڑ سالانہ آمدن پر 4% ٹیکس لگایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نئی شرط سامنے نہ آئی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ 10% سپر ٹیکس سے صنعتیں بند ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھے گی. سینکڑوں فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، گاڑیوں کی پروڈکشن بند ہونی شروع ہو گئی ہے، موبائل کمپنیوں کی پروڈکشن بند ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ حکومت 750 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی لگائے گی. بجٹ پر بجٹ لائے جا رہے ہیں. حکومت معیشت پر جھوٹ نہ بولے. الیکشن نہ ہوئے تو ہمارا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا. مزمل اسلم نے ٹیکس لگا کر غربت کم کرنے کا فارمولا مذاق قرار دے دیا. کہا ملک کی پیداوار منفی زون میں چلی جائے گی. معاشی حالات بہت برے ہو چکے ہیں. ہم نے آگے 13 کمپنیوں پہ 10% ریٹ بڑھا دیا. 750 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی لگائیں گے. ابھی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ موبائل کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے پروڈکشن بند کر دی ہے. کئی گاڑیوں کی پروڈکشن بند ہوگی اور چیزیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ 10% 13 انہوں نے انڈسٹریز کو لگایا وہ بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اس وقت ہم بالکل ایک معاشی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ لوگ اگر رہے اور ہم الیکشنز نہیں کروائے، ہم نے ایک ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ نہیں آئی لوگوں کی، تو ہم خدا نہ خواستہ سری لنکا کی طرح ہمارا حشر نہ ہو. اگر کارخانوں کی رفتار وہی رہی جو شوکت صاحب کی جو ہے 10% کے حساب سے رہی، ہمارے حساب سے کارخانوں کی رفتار منفی ہو جائے گی. اور اس سال جو 7400 ارب روپے جو ٹیکس دینے جا رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ابھی پیشنٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ 6500 ارب روپے ٹیکس نہیں لیں گے. اور 75 سال میں ایک دفعہ جو کووڈ کی وجہ سے منفی گروتھ ہوئی تھی، اب ہم 2 سے 3% پہلے کہہ رہے تھے گروتھ ہوگی، اب وہ بھی نہیں ہوگی، وہ بھی منفی ہو جائے گی. یہ جتنے دن کنٹینیو کریں گے اتنا جو ہے اس ملک کی عوام اور کاروبار اور معیشت پہ بنے گا. خبروں میں آگے دیکھیے معاشی ماہرین کی پیش گوئی کیا. اور اس ہفتے کیا کتنا مہنگا؟
वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौम को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। कहते हैं टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया। छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेने लगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर ले आए थे। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोई तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। IMF प्रोग्राम को बहाल करना जरूरी था। मुल्क अब बेहतरी की तरफ जाएगा। में वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट बहस समेट ली। वज़ीर खजाना ने ऐवान में टैक्स का हदफ बढ़ाने का ऐलान किया। तो हमारा टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। मिफ्ता इस्माइल ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले फैसलों का दिफा करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। IMF प्रोग्राम को बहाल करना जरूरी था। जो हमने टैक्स लगाए वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने छोटे दुकानदारों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा, छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। पाकिस्तान में 90 लाख 25 लाख दुकानों को हम नेट में लेकर आएंगे। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। वज़ीर खजाना ने घर बनाकर बेचने वालों पर और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगाने का ऐलान किया। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें ताकि इनकी भी आसानी हो जाए। वज़ीर खजाना ने दावा किया कि इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मिफ्ता इस्माइल ने अपनी कारकर्दगी का मलबा पिछली हुकूमत पर डालते हुए कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोई तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर ले आए थे। इमरान खान की हुकूमत ने पौने 4 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के ऐलान से हिस्स बाजार में भौचाल। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही मनफी रुझान, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 2053 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठी। छोटे सरमायाकार सर पकड़कर बैठे रहे और अपनी सरमायाकारी डूबते हुए देखते रहे। पर सुपर टैक्स का ऐलान, स्टॉक मार्केट में तबाहकुन मनफी रुझान। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। सरमायाकारों ने धड़ाधड़ हिस्से बेचना शुरू कर दिए। 100 इंडेक्स में 2053 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठी और 40,663 पर आ गई। मार्केट में मनफी रुझान के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। छोटे सरमायाकार सर पकड़कर बैठे रहे और अपनी सरमायाकारी डूबते हुए देखते रहे। और नाअहल हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। अमेरिकी करेंसी का जवाबी वार, इंटरबैंक पर डॉलर 25 पैसे महंगा, 207 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर से बड़ा इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 900 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोना 1,41,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपए के इजाफे से 1,21,400 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $7 की कमी से $1,824 पर आ गया। नाअहल हुकूमत के सुपर टैक्स लगाते ही हिस्स मार्केट क्रैश कर गई। डॉलर महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार बैरून मुल्क हैं जिन पर ऐसे सुपर टैक्स का कोई असर नहीं। कपड़े बेचकर महंगाई कम करने वाला मंसूबा भी अवाम अब कैंसल समझें। सनतों पर टैक्स लगाने से महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत आएगी। उन्होंने मुल्क की मईशत और अवाम का जनाजा निकाल दिया। इस टोले से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान का मफाद है। का अवाम पर एक और कारीवार, सनतकारों पर टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ा दी। सियासतदान परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार लंदन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में हैं। यहाँ सिर्फ दिखावे के बिजनेस हैं जिन पर टैक्स का कोई असर नहीं। ये झूठ कहीं और जाकर बोले। असद उमर ने तंज किया। शहबाज शरीफ ने आज कहा, सारी रात जाग कर और जान लड़ा कर महंगाई कम करेंगे, तो इसका मतलब कपड़े बेच कर महंगाई कम करने वाला मंसूबा अब कैंसिल समझें। शहबाज गिल ट्वीट में बोले,
बोले, महंगाई के तूफान में मज़ीद शिद्दत आएगी। सनदों पर टैक्स लगाने का नतीजा बेरोजगारी में इजाफा है। फयाज चौहान ने बोल की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क गुंडागर्दी करने और NRO से चलते हैं। 6 लाख की आमदन वाले पर भी टैक्स लगा दिया। मिल मिला के पाकिस्तान की अवाम और मईशत और खजाने का जनाजा निकाल दिया, तभी तो आज क्रैश हो गई है कराची की स्टॉक एक्सचेंज। जनाब ये स्पेशल एजेंडे पे आए हैं, इन्होंने उस एजेंडे को पूरा करना है। उनका एजेंडा ये है कि अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ। अपने आप को रिलीफ क्या दे रहे हैं? इन्होंने अपने सारे केसेस नैब तरमीमी बिल इक्वल टू NRO 2 के जरिए से भी, और फिर अपने जितने गवाहान थे, जितने लोग थे, सारों को जनाब कोई खुदकुशी और कोई जनाब दिल का दौरा और आगे पीछे करके फारिग, और आवाम को जनाब जो तकलीफ दे रहे हैं वो आपके सामने है। उनका मजीद कहना था कि ये खुद को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना की गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बदतरीन महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट में कहा कि गरीब महंगाई से मर गया, IMF का हुक्मनामा नहीं आया। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी गरीब को मार देगी। जुलाई में बिजली, सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की इम्पोर्ट से भी कम है। शेख रशीद ने कहा, मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। राना सनाउल्लाह नए आर्मी चीफ की तारीख किस हैसियत में दे रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।